Hello everyone, I am Kajal Kaushal. Welcome you all to Ye School platform. So the next video in C++ programming course is function overloading. In this video I will tell you about what is function overloading and how we overload a function and many more. So let's start. The subtopics which I will be covering today is what is function overloading, declaration and definition, restriction on overloaded function, calling overloaded functions and an example of function overloading. What is function overloading? The process of having two or more functions with the same name but different in parameters is known as function overloading. जब एक ही फंक्शन को सेम नेम से हम दोबारा यूज़ करते हैं या फिर मैनी मोर टाइम्स हम उसको यूज़ करते हैं तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं. But they all the function have this different parameters. C++ implement polymorphism through overloaded function and overloaded operators. As I told you about polymorphism, in C++ we apply the polymorphism concept through the overloading. Either it is function overloading or operator overloading. So in function overloading, the function is redefined by using either different types of argument or different number of arguments. फंक्शन ओवरलोडिंग में हम फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं, दोबारा डिफाइन करते हैं विद द सेम नेम, बट उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. क्या तो उनकी डेटा टाइप डिफरेंट होगा या फिर उनका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल फ्लोट डिवाइड एंड फ्लोट डिवाइड, ये दो फंक्शन हैं जिनके नेम सेम है, जिनका डेटा टाइप भी सेम है, बट इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दे मस्ट बी डिफरेंट. int a int b is different from float x and float y. They both have different data type, so we can overload the function by this syntax. Divide taking int argument is different from divide taking float argument. They both have different meaning. Int have different meaning and float have different meaning. So next is declaration and definition. The key to function overloading is function's argument list, which is known as function signature. जो भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उनको फंक्शन सिग्नेचर बोलते हैं. और फंक्शन ओवरलोडिंग का मेन एस्पेक्ट आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. टू ओवरलोड अ फंक्शन नेम वी नीड टू डिक्लेयर एंड डिफाइन ऑल द फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर्स. हमें किसी भी फंक्शन को ओवरलोड करने के लिए उनका नेम सेम रखना होता है, बट दे मस्ट हैव डिफरेंट सिग्नेचर्स. उनके सिग्नेचर्स अलग होने चाहिए. हम फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन अलग अलग तरीके से करते हैं, लाइक void sqr int I, void sqr character c, void sqr float f. They all have different meaning. This is called declaration of a function by putting semicolon in the end of function declaration. And how we define it is by putting the body of the function inside its double quotes. Void sqr int I, cout integer I square is I star I. This is the definition of the function. And void sqr int I is different from void sqr character c. इन दोनों के डिफरेंट मीनिंग है और इन दोनों की बॉडी भी डिफरेंट है. So this is the definition of the function, and how we declare is by putting semicolon in the end. Next is restriction on overloaded function. Any two function in a set of overloaded function must have different arguments. हमें क्या फंक्शन ओवरलोडिंग करने से पहले क्या चीज़ों को याद रखना चाहिए, क्या चीज़ें हमें प्रोहिबिट करनी चाहिए. एनी टू फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन जो ओवरलोड कर रहे हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होने चाहिए. ओवरलोडेड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट ऑफ द सेम टाइप बेस्ड ऑन द रिटर्न टाइप अलोन इज एन एरर. अगर किसी दो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट सेम है, लाइक इस एग्जाम्पल में void sqr int I is same int I to the int sqr int I, दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है, बट इनका जो रिटर्न टाइप है sqr का void और दूसरे sqr का int, ये डिफरेंट है, तो ये हमें एरर शो करेगा और इट डज नॉट ओवरलोड अ फंक्शन. Next is type def declaration do not define new types, they introduce synonyms for existing types. टाइप डेफ डिक्लेरेशन से हम कोई नई टाइप डिफाइन नहीं करते, इट जस्ट क्रिएट एन अलाइज ऑफ द एग्जिस्टिंग फंक्शन. लाइक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है टाइप डेफ कैरेक्टर स्टार PSTR.
इसने कैरेक्टर PSTR को एक कैरेक्टर डिफाइन किया है, वॉइड प्रिंट कैरेक्टर स्टार PSTR। अब जब ये वॉइड प्रिंट दूसरा फंक्शन यूज करेगा तो PSTR को ये कैरेक्टर का एक अलाइज लेगा टू द पैरामीटर ऑफ SZ टू प्रिंट। दे बोथ हैव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट, उन दोनों में आर्ग्यूमेंट जो है वो डिफरेंट है, बट PSTR इज सेम एज द टाइप कैरेक्टर। जो हमने स्टार्टिंग में टाइप डेफ बताया है कि PSTR का टाइप है कैरेक्टर, तो PSTR यहाँ स्टार्टिंग में यूज करने का मतलब है कैरेक्टर टाइप का SZ टू द प्रिंट। Next is enumerated types are distinct and can be used to distinguish between overloaded function. Enumerated डेटा टाइप जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं अलग अलग डिस्टिंक्ट टाइप में, और उनसे हम ओवरलोडेड फंक्शन को अलग अलग आर्ग्यूमेंट लिस्ट पास करने में भी यूज़ करते हैं। अब इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स होते क्या हैं? ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जिनके जिनके थ्रू हम इंटीग्रल कांस्टेंट पास करते हैं। इसमें हम enum कीवर्ड का यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी वैल्यूज़ को कोई स्पेसिफिक इंटीजर देना हो, कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट देना हो, तो हम इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कॉलिंग एन ओवरलोडेड फंक्शन। Overloaded function are called just by checking the number and type of argument determine which function should be invoked. किसी भी ओवरलोडेड फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो उसके आर्ग्यूमेंट्स को चेक करता है कि उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट कौन सा मैच हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग फंक्शन कॉल होता है। समटाइम्स देयर माइट बी एम्बिग्यूटी बिटवीन फ्लोट एंड डबल वैल्यूज। फ्लोट, जब हम किसी भी एग्जाम्पल में फ्लोट या डबल आर्ग्यूमेंट लेते हैं तो वहाँ पर एम्बिग्यूटी अगर अकर होती है, लाइक अगर हम उसको डबल मेंशन कर रहे हैं तो वो उसको फ्लोट और डबल दोनों वैल्यूज़ में इंक्लूड करता है। तो हम इस एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट सफिक्स का यूज़ करते हैं, लाइक एफ, एल, यू। अगर हमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू देनी हो जो कि नॉर्मल कांस्टेंट वैल्यू लाइक 312.32, हमें ये वैल्यू इसको डबल डी को पास करवानी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल टेक इट एज डबल टाइप। फाइल एडिंग सफिक्स, अगर हम इसी कांस्टेंट वैल्यू में सफिक्स ऐड कर देंगे तो वो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। 312.32 एफ से वो उसको फ्लोट वैल्यू में काउंट करेगा और एल ऐड करने से वो उसको लॉन्ग डबल वैल्यू में काउंट करेगा। यू कैन बी यूज्ड फॉर कांस्टेंट अनसाइंड। अनसाइंड मतलब उसके पॉजिटिव इंटीजर है, ये उसको डिफाइन करेगा। साइन में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं। तो हम किसी भी वैल्यू को अगर हमें उसको डिफरेंट टाइप से स्टोर करवाना है तो उसमें सफिक्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ function overloading. Include iostream header file using namespace std. Int mul is a function name. Int and int, these are the declaration of function जिनको सेमीकोलन से ऊपर डिक्लेयर किया है। अब इन फंक्शंस को नीचे डिफाइन किया है कि इसमें क्या फंक्शन की बॉडी क्या एग्जीक्यूट करेगी। इंट मल इंट ए और इंट बी रिटर्न ए स्टार बी। क्या रिटर्न करेगा ये? हमें प्रोडक्ट ऑफ ए स्टार बी। फ्लोट मल में डबल एक्स वाई और इंट वाई, डबल एक्स और इंट वाई दोनों के डेटा टाइप्स डिफरेंट हैं, दोनों में आर्ग्यूमेंट्स भी डिफरेंट है। उसमें एक ए आर्ग्यूमेंट है, इसमें आर्ग्यूमेंट एक्स एंड वाई है, और इसमें रिटर्न करेगा एक्स स्टार वाई। मतलब दोनों फंक्शन है सेम नेम, फंक्शन ओवरलोड हो रहा है डिफरेंट आर्ग्यूमेंट से। अब हमने फंक्शन को कॉल किया है, इंट r1 में उसकी वैल्यू स्टोर की है मल 6,7। 6,7 बोथ आर इंटीजर्स, तो वो कौन से फंक्शन में जाएगा? इंट मल वाले में, क्योंकि दोनों 6 एंड 7 इंटीजर टाइप है, तो हमें रिटर्न ए स्टार बी होगा। तो हमें सी आउट में क्या पुट होगा? r1 में, और उसकी इंट मल फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिटर्न से वैल्यू आएगी उसको वो इंट r1 में स्टोर कर देगा, और इंट r1 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। आउटपुट r1 इज 42, 6 स्टार 7। सेम एज फ्लोट r2 में मल 0.2, 3। अब 0.2 एक डबल वैल्यू है तो ये फ्लोट वाले पॉइंट में जाएगा
और डबल वैल्यू क्या लेगा 0.2 और इंट वैल्यू 3 लेगा। ये आर्ग्यूमेंट्स मैच करते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट्स मैच करते हैं, किसका डेटा टाइप इंट है, किसका डेटा टाइप डबल है, किसका फ्लोट है। फिर R2 में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी और हमें R2 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। सो दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड कीप लर्निंग फ्रॉम ये स्कूल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।